Hey guys, what's up? English Guru welcomes you on my YouTube channel. Let us start the class with our three mantras. First, I can learn English and I will. Second, the more listening, the better speaking. And third, practice is the key. मेरे दादाजी हुक्का पीते हैं। हुक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। मेरी एक आंटी हैं, वो इतनी मोटी हैं कि दरवाजे की चौखट में फंस जाती हैं। चौखट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। तो चलो सीखते हैं इन वोकैबुलरी सेक्शन। ये फिरकी है जो मशीन में डलती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाबन। बाबन। साबुनदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं सोप केस। सोप केस। सोप केस। साबुनदानी, सोप केस। बुनाई करने वाली सुइयों को कहते हैं निटिंग नीडल। निटिंग नीडल। शीशी है, शीशी को हम इंग्लिश में कहते हैं फेयर। फेयर। सीढ़ियों को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस। चौखट, चौखट को हम इंग्लिश में कहते हैं डोर फ्रेम। डोर फ्रेम। घर के आंगन को इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड। सोफे को इंग्लिश में कहते हैं काउच। 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 हुक्के को इंग्लिश में कहते हैं हबल बबल। हबल बबल। हबल बबल। नट क्रैक करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर। धूपदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसर। 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 वाओ, आज मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रही हूँ। 5 स्टार होटल मतलब वेटर्स भी इंग्लिश में बात करेंगे ना? अरे यार, तो इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए ना। अगर 5 स्टार होटल में जा रहे हो और इंग्लिश में अगर वेटर पूछे और हमें नहीं पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो 5 स्टार होटल में जाने से पहले एक बार इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने तो ज़रूरी है ना, कि कन्वर्सेशन कैसे करना है 5 स्टार होटल में जाके। तो चलो सीखते हैं। Hi, can I help you? A table for 3 please. We are full booked at the moment. Could you wait for 10 minutes? Okay. Can I get your name? Rosie Frank. Miss Rosie Frank, your table is ready. Please come this way. It's too dark here. Can we get a table by the window and away from toilet? Okay. Can I take your order? We'll take another minute. Are you ready to order? We'll have one dal makhni and one pindi chana. I'm sorry, but pindi chana is not available right now. In that case, can we have malai kofta? Yes, ma'am. What would you like in breads? 2 butter naan and 2 garlic naan. Anything to drink? Do you have drinks by the glass or pitcher? Both. How would you like to have? I'll have a glass of Pepsi. Can you start with a drink, please? Okay. Your food will be served in 10 minutes. I'll get your Pepsi right away. After some time. Excuse me. We have been waiting for half an hour for food. I'm sorry, ma'am. Let me check in the kitchen. I'll be right back.
after some time. It will take in 5 more minutes. Sorry for the delay. Excuse me, I didn't order this. I'm sorry about that. Let me take it back. Excuse me, this is cold. I'm so sorry. Let me change it. Excuse me, it doesn't taste right. Can I change my order, please? Of course. What would you like to have instant? 1 kidney beans. Is everything okay? Can I get some ice cubes? My drink is not chilled anymore. Do you need anything else? Please pass me the salt. Is the extra pickle charged? Yes, ma'am. It should be complimentary. Never mind. I'm good for now. Would you like any dessert? Can I see your dessert menu? I would like to order an apple pie. Can you split it into 2? Sure. Can we have the bill? Here it is. Don't you bring mouth freshener along with the bill these days? No, ma'am. Our policy has changed recently. To hell with your policy. Here you go and keep the change. By the way, food was delicious. Pass my compliments to the chef. Thank you, ma'am, for the visit. इंग्लिश बिना इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ सोनी सोनी सी लगती है, यू नो, अनडिजाइंड, अनइंटरेस्टिंग. तो चलो इंग्लिश को बनाते हैं इंटरेस्टिंग. कैसे? कुछ इडियम से. और इडियम भी ऐसे वैसे नहीं जो डेली यूज़ में होते हैं, वो वाले इडियम. और समझने कैसे? बहुत ही आसान तरीका है. तो चलो समझते हैं. our first idiom is under somebody's nose. नोज के नीचे. What is my under my nose? क्या है? मतलब बिल्कुल सामने. Under somebody's nose मतलब बिल्कुल सामने. जब चीज़ें आपके सामने रखी हो, you can say the thing is under your nose. Okay? Next is smell a rat. घर में अगर कहीं पे भी कोई चूहा मर जाए, उसकी स्मेल आती है ना, बहुत बुरी स्मेल आती है ना. अगर आपको स्मेल आती है तो आपको डाउट हो जाता है कि कहीं तो चूहा मरा हुआ है, कहीं तो एक डेड रेट है. इसी तरीके से इसका मीनिंग क्या हुआ? डाउटफुल. व्हेन यू बिकम सस्पिशियस, दिस इज स्मेल अ रेट. नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन क्या होती है? हड्डी. ऑफ कंटेंशन. एक डॉग है, इधर एक डॉग है, बीच में एक बोन. क्या होगा गाइस? लड़ाई की जड़ क्या है? बोन. सो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स रूट ऑफ एनी क्वेरल. किसी भी झगड़े की जड़, किसी भी झगड़े का कारण. नेक्स्ट इज कैट्स एंड डॉग्स. बारिश होते हुए देखिए, जब हल्की हल्की बारिश होती है तो कैट्स और डॉग्स बड़े मज़े से वहाँ घूम रहे होते हैं. लेकिन अगर बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है तो सारी कैट्स, सारे डॉग्स अपने लिए शेल्टर ढूंढने में लग जाते हैं. तो मतलब कैट्स एंड डॉग्स, ऐसी वाली बारिश जब डॉग्स और कैट्स अपने लिए शेल्टर ढूंढने लग जाते हैं, मीन्स रेन हैवीली रेन होना, उसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स. इट रेन कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट. नेक्स्ट, कैट्स एंड डॉग्स के आगे मैंने अगर लगा दिया लाइफ. कभी कैट्स को और डॉग्स को एक कमरे में बंद करके देखना. हाउ विल बी द सिनेरियो? कैसा सिनेरियो होगा? आपस में लड़ेंगे, मतलब कलह होंगी, झगड़ा होगा. तो अगर हमें कहना है किसी की जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कलहपूर्ण है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे कहना, ओ माई गॉड, हिज लाइफ इज जस्ट कैट्स एंड डॉग्स लाइफ. गॉड. नेक्स्ट इज कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक मीन्स मुर्गा, बुल मीन्स सांड. कभी सांड की और मुर्गे की दोस्ती देखी है? और वो हो भी गई तो कैसी बकवास जोड़ी है.
कैट्स एंड कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स बकवास स्टोरी, अनइमेजिनेबल, अनरीजनेबल। सो ये थे हमारे आज के इडियम्स। आई होप आपने जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आपने समझा है, उसे अच्छे से पकड़ा है, और ये वाले इडियम्स आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हैं। सो थैंक यू।